Hello everyone, this is Sudarshan Yadav. Dear students, today we will read a new chapter, A Truly Beautiful Mind. This topic, A Truly Beautiful Mind, is referred to great scientist Einstein, Albert Einstein. We will see why his mind is called truly beautiful. We will read in this chapter that he was a worshipper of world peace and non-violence. He always advocated of world peace and non-violence. So this chapter is a short biography of Albert Einstein. Let's start. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. Dear students, in the opening line, we will see where Albert Einstein was born and when. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in Germany at Ulm city. Without any indication that he was destined for greatness means when he was a small boy, small child, no one can predict that one day this boy will be a great man, a genius man. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. A freak means one who doesn't behave like others, doesn't look like others, doesn't think like others. Freak means you can say crazy. To her, his head seemed much too large. His head was somewhat large like other boys. बचपन में जब आइंस्टाइन थे, उनका जन्म हुआ, उस समय इनके हेड जो है नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा बड़ा था. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. At the age of 2.5, Einstein was not able to speak. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. After 2.5 years, when he began to speak, he uttered means spoke, बोलना. He uttered everything twice, हर चीज़ को दोहराते थे. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him Brother Boring. At the time of playing, Einstein didn't think what he should do with his playmates. So his playmates, his classmates called him Brother Boring. बच्चे जब खेलते थे उस समय आइंस्टाइन पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बिल्कुल शांत खड़े रहते थे और बाकी बच्चे इनको ब्रदर बोरिंग की कह के इनके साथ नहीं खेलते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ. इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन हैड टू प्ले हिमसेल्फ अलोन much of the time. So the youngster played by himself much of the time himself. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he said to have said, "Fine, but where are her wheels?"
Albert Einstein played with himself and play with मैकेनिकल टॉयस। यहाँ से हम देखेंगे इनका कुछ इंटरेस्ट हमें फिजिक्स में, मैकेनिकल चीज़ों में दिख रहा है। मैकेनिकल टॉयस को लाइक करते थे, जिस मशीन लगे होते थे, जैसे आजकल के बच्चे रिमोट वाले कार या जो खिलौने पसंद करते हैं। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो इनकी जो न्यू बॉर्न सिस्टर पैदा जब हुई, माजा उसका नाम था, उसको देखकर इन्होंने कहा कि इसके व्हील कहाँ हैं, मतलब ये चलेगी कैसे। स्मॉल न्यू बॉर्न बेबी के बॉडी पार्ट्स बिल्कुल टेंडर होते हैं, तो इन्होंने तुरंत इनके दिमाग में आया कि ये, उनको लगा ये भी एक टॉय है उनकी बहन, और इसने पूछा कि इसके व्हील कहाँ हैं, मतलब इसके फीट कहाँ हैं, पैर। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर। एक बार स्कूल के एक हेडमास्टर, प्रिंसिपल ने आइंस्टाइन के फादर को एक बैड स्टेटमेंट दे दिया कि आपका बेटा आइंस्टाइन चाहे जो कोई प्रोफेशन चूज करे, ही कांट सक्सेस, वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ही नेवर इंटरेक्ट विथ एनीवन, ही ऑलवेज कीप साइलेंट। अधिकतर ये बोलता नहीं, इंटरेक्ट नहीं करता है, चुपचाप पड़ा रहता है। ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout his life. Dear students, Einstein began learning to play the violin at the age of 6. He learned वायलिन हाउ टू प्ले इट एट द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र में उन्होंने सीख लिया हाउ टू प्ले अ वायलिन, वायलिन कैसे बजाते हैं, क्योंकि इनकी माँ जो है हमेशा इनको इनकरेज करती थी। और बाद में ये शौकीन, एमेच्योर मीन्स डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रादर देन एज ए प्रोफेशन। तो ये अपने शौक़ के लिए वायलिन बजाते थे। बहुत से लोग अपने शौक़ के लिए वायलिन, हारमोनियम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, और कुछ लोग प्रोफेशन के तौर पे इसको अर्निंग करने के लिए इसको प्ले करते हैं। तो इन्होंने अपने शौक़ के लिए, एंजॉयमेंट के लिए इसको बजाना शुरू किया और सीखा। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ बैड पीपल। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old. Albert Einstein was not a bad pupil. Pupil means student. क्योंकि अगर बैड होते तो वायलिन 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीख गए थे, कैसे इनको वायलिन बजाना है, हाउ टू प्ले वायलिन, ही लर्नड इट इजली। हाई स्कूल में म्यूनिक, जो जर्मनी में का एक सिटी है, वहाँ से इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई किया। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड। जब 15 महीने के थे तो इनके पेरेंट्स यहाँ म्यूनिक में, उल्म से म्यूनिक आके शिफ्ट हो गए थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स इनका आया। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन माने ओवर डिसिप्लिन, बहुत अधिक डिसिप्लिन। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। आइंस्टाइन का अपने टीचर के साथ हमें कभी कभी क्लैश हो जाता था। क्लैश्ड मतलब आर्गूमेंट, टकराव हो जाता था, क्योंकि आइंस्टीन इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे और बहुत ज़्यादा रेजिमेंटेशन, ओवर डिसिप्लिन को नहीं मानते थे। ही वाज फॉन्ड ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहते थे।
At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. Stifled means unable to breathe, suffocated. इनका वहाँ पे इतना ज़्यादा ओवर डिसिप्लिन था, रिजमेंटेशन था कि बहुत अधिक डिसिप्लिन को ये नहीं मानते, अच्छा इनको नहीं लगा और ज़्यादा डिसिप्लिन में इनका दम घुटने लगा और ये उस स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिए। फॉर गुड मीन्स फॉर एवर, हमेशा के लिए उस स्कूल को छोड़ दिया इन्होंने। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलान, मिलान इटली में है। एक साल पहले इनके फैमिली यहाँ पे आ गए। एंड लेफ्ट दियर सन विथ रिलेटिव्स, रिलेटिव के यहाँ इनको रख कर कहीं काम से चले गए। आफ्टर प्रोलांग, प्रोलांग मतलब लॉन्ग, लंबे, आफ्टर प्रोलांग डिस्कशन, लंबे डिस्कशन के बाद, वार्तालाप के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। लंबे डिस्कशन के बाद, पेरेंट्स से लंबे डिस्कशन के बाद इन्होंने म्यूनिक में स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई करने के लिए उनके पेरेंट्स तैयार हो गए, क्योंकि दिस प्लेस वाज मच बेटर दैन म्यूनिक। स्विट्ज़रलैंड म्यूनिक से ज़्यादा यहाँ लिबरल था, आज़ादी थी। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर finishing school he decided to study at a university in Zurich. आइंस्टीन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा गुड थे, अच्छे थे, फिजिक्स में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो ये दो सब्जेक्ट इनके फेवरेट सब्जेक्ट थे। एंड और स्कूलिंग शिक्षा पूरी होने के बाद ये कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के लिए जूरिच, जो स्विट्ज़रलैंड में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आए। बट साइंस वजंट द ओनली थिंग्स दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरस मस्टैच। तो वालरस मीन्स एक मूछ का शेप होता है, डैशिंग यंग मैन मतलब हैंडसम। यूथ, जब आइंस्टाइन यूथ थे, बहुत ही हैंडसम थे। और साइंस वजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग मीन्स न केवल इनका साइंस और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, बल्कि ही लाइक्ड अदर सब्जेक्ट आल्सो। ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। यूनिवर्सिटी में जब ये जूरिक में आए, वहाँ पे ही मेट टू हिज न्यू स्टूडेंट, न्यू फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। एक लड़की है, उससे इनकी मुलाकात होती है। whom he found to be a clever creature, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट थी। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड। ये लड़की जो सर्बिया से आई थी, सर्बिया एक कंट्री है, तो इसलिए इसको सर्ब कहा गया है। स्विट्ज़रलैंड में आई थी पढ़ाई करने के लिए। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री। जूरिच यूरोप में ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ वीमेन को भी एजुकेशन मिलता था। वहाँ बहुत यूरोप में हर यूनिवर्सिटी में लेडीज़ को अलाउ नहीं था, लेकिन जूरिच में वीमेन भी एजुकेशन ले सकती थी। आइंस्टाइन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइन those people in his family and the university with whom he was constantly at odds. Philistine means होता है one who against, a word used disapprovingly to talk about people who do not like art, literature or music. Philistines का मतलब है कि जो लोग आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक को लाइक नहीं करते थे। आइंस्टाइन के समय बहुत जो लोग इसको लाइक नहीं करते थे, आर्ट, म्यूज़िक और लिटरेचर को, उनको फिलिस्टाइन कहा जाता था। और उस समय इसको काफ़ी लोग हेट करते थे। तो जो
आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक को आइंस्टाइन ने लाइक किया, मिलेवा मैरिक भी लाइक किया, इसलिए वो उसके फ्रेंड उसको बना लेते हैं। बाद में हम देखेंगे स्टोरी में तो वह उनकी फ्यूचर वाइफ बनती हैं। दोज पीपल, अच्छा, आइंस्टाइन saw in her an ally against the Philistine. Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. To be at odds means to be in opposition against. To be in opposition or to be in against. तो इनके घर में भी कुछ लोग फिलिस्टाइन थे, आइंस्टाइन के घर में, इनके फैमिली में, जो आर्ट, म्यूज़िक और लिटरेचर को नहीं लाइक करते थे, और यूनिवर्सिटी में भी। द कपल फेल इन लव, दोनों में लव हो जाता है, मिलेवा मैरिक और आइंस्टाइन में। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट दियर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। इनके लेटर, जो लव लेटर हैं, आज भी रखे हुए हैं, और ये मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, अपने लव लेटर में साइंटिफिक तरीके से ये लोग लिखते थे, साइंस का वर्ड यूज करते थे। इन आइंस्टाइन के समय में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी जितनी आज है, इसलिए उस समय लव लेटर लिखा जाता था कागज़ पर। नेक्स्ट, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. अल्बर्ट आइंस्टाइन एक इन्वेंशन पे काम कर रहे थे, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो वो कहे कि वो दिन बहुत हैप्पी और प्राउड का होगा जब हम उसमें विक्ट्री हासिल कर लेंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। इन 1900 आइंस्टाइन वाज एट द एज ऑफ 21 की उम्र में पहुंच गए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का उस समय ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया एंड इन स्पाइट ऑफ इट ही वाज अनएम्प्लॉयड। इसके बावजूद भी वो उनको रोज़गार नहीं मिला था, जॉबलेस थे। ही वर्कड एज ए टेक्निकल असिस्टेंट्स, गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। शुरू में ये प्राइवेट टीचिंग असिस्टेंट का काम किया इन्होंने। बाद में 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट की पोस्ट पे इनकी ज्वाइनिंग होती है। कहाँ पे? पेटेंट ऑफिस में, इन बर्न स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न। पेटेंट ऑफिस क्या चीज़ है? पेटेंट अ डॉक्यूमेंट्स विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। पेटेंट जो भी कोई इन्वेंशन का काम करता है, उस इन्वेंटर को एक राइट्स दिया जाता है, उसी को पेटेंट कहते हैं। जैसे भारत का हल्दी पर, नीम पर इसका पेटेंट है, जो कुछ भी वो इससे मेडिसिन बनाएगा। बाकी लोग ये टेक्नोलॉजी नहीं इससे चुरा सकते। भारत का इस पर पेटेंट है, कॉपीराइट है, यू कैन से। अभी कोरोना का वैक्सीन बनाने की बात चल रही है। जो भी बना लेगा फर्स्ट पहले वो उसका पेटेंट कराएगा, ताकि बाकी लोग उससे ही खरीदेंगे। नेक्स्ट, वन ऑफ द फेमस, अच्छा नेक्स्ट है, while he was supposed to be assisting other people invention,
Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. आइंस्टाइन लोगों का पेटेंट में जो लोग भी आते थे ये चेक करते थे कि जो भी इन्वेंशन है उस व्यक्ति का ओरिजिनल है कि नहीं, इसके बाद उसको सर्टिफिकेट देते थे और सीक्रेट रूप से अपना वो आविष्कार कर रहे थे, कुछ न कुछ वो आविष्कार कर रहे थे, किसी को पता नहीं था। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन्स स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। इंडीड two perfectly accurate clock will not continue to show the same time as they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From the followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy, E equal to mc square. तो इनका एक फेमस पेपर 1905 में आया, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अनुसार टाइम और डिस्टेंस के बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, मीन्स नॉट मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स। बताया गया है कि दो अगर घड़ी एक्यूरेट घड़ी को रख दिया जाए तो दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंट आ जाता है। आगे हम देखेंगे कुछ फिजिक्स का है ये E इक्वल टू mc स्क्वायर। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, m फॉर मास एंड c फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स नो एयर। तो ये आविष्कार इन्होंने किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि E एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। m आपका मास है, c जो है c आपका ये स्पीड ऑफ लाइट्स है। तो आगे देखेंगे हम, व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours। दैट इज़ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है कि यदि आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठें तो आपको लगेगा कि आपने 2 मिनट ही बैठा, और अगर किसी गर्म स्टोव या अनप्लीजेंट प्लेस में 2 मिनट बैठ जाएं तो आपको लगेगा कि हम 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं। तो टाइम का मेजरमेंट अलग अलग तरीके से होता है। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. Unraveling means starting to fail. जब अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड के लिए फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उस समय इनकी प्राइवेट लाइफ जो है अनरेवलिंग हो रही थी, स्टार्टिंग टू फेल हो रही थी। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his study. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा कि ये अपनी स्टडी पूरा होने के बाद मिलेवा मैरिक से शादी कर लेंगे। बट व्हाट हैपेंड, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। उनकी जो मदर थी पोलिन आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर पोलिन आइंस्टाइन, शी वाज अगेंस्ट टू दिस मैरिज। वाई, क्यों थी? बिकॉज शी थाट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, 3 साल बड़ी थी। अक्सर लड़के लड़की की शादी में 3 साल अगर उम्र अगर किसी की ज़्यादा है तो उसमें ये माना जाता है कि लड़के की उम्र 3 साल ज़्यादा हो, 4 साल ज़्यादा हो, 5 साल, लड़की की उतना ही कम होना चाहिए। ये अच्छी शादी इस तरह से माना जाता है। बट यहाँ पे 3 साल बड़ी थी मिलेवा मैरिक, इसलिए उसकी माँ अल्बर्ट आइंस्टाइन की नहीं चाहती थी कि उनकी शादी उनके साथ हो। शी वाज आल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस। शी इज़ ए बुक लाइक यू
हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। वेडिंग ऑफ मतलब कैंसल्ड हिज मैरिज विथ मिलेवा। जब उन्होंने लाइक नहीं किया मदर ने, तो शादी उन्होंने उस समय नहीं किया। बाद में द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। बाद में मिलेवा मैरिक 1903 में शादी कर लिए। उसी से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलेवा मैरिक से 1903 में मैरिज कर लेते हैं। एंड हैड 2 सन्स, 2 बच्चे होते हैं। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, 2 साल बाद, कुछ साल बाद, द मैरिज फाल्टर्ड। फाल्टर्ड मीन्स बिकम वीक। फाल्टर्ड मीन्स हियर बिकम वीक। तो कुछ समय बीतने के बाद उनकी शादी में सावरनेस आ जाता है, खराश उत्पन्न होता है। क्यों? मिलेवा मीन वाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग अनहैप्पी हाउसवाइफ के रूप में सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो है वाल्टिंग एम्बिशन थी, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होती जा रही थी। हाउसवाइफ के रूप में सही नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए ठीक नहीं फिट हो रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919। कुछ साल तक इनमें अनबन बना रहा, लड़ाई झगड़े भी होते रहे, और 1919 में डाइवोर्स हो जाता है। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन इल्सा द सेम ईयर। और 1919 में डाइवोर्स होने के बाद अपने जो कजिन है, मौसेरी बहन इल्सा है, उससे मैरिज करते हैं। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। कोइंसिडेड मीन्स हैपन विथ सेम टाइम। जब इन्होंने मिलेवा मैरिक से शादी किया, इनको कई तरह से सफलता मिली। 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत इनकी पब्लिश हुई। विच प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। जो इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी मीन्स एवरीथिंग फॉल टूवर्ड्स अर्थ व्हेन वी थ्रो इट इन द स्काई। जो कुछ भी हम अगर आकाश की तरफ फेंकते हैं, ज़मीन की तरफ गिरती है, यही ग्रेविटी है। इन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1909 बॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. 1915 में आइंस्टाइन ने फोरकास्ट कर दिया था कि 1909 में 4 साल बाद जब एक सोलर इक्लिप्स लगेगा, सूर्य ग्रहण, उस समय जो स्टार हैं उनके जो लाइट्स हैं उनकी जो डायरेक्शन होगी, जब सूर्य ग्रहण होगा, सूरज बीच में आ जाएगा, तो कुछ डिग्री पे वो चेंज होगी। और 1919 में जैसा उन्होंने फोरकास्ट किया था वैसा ही हुआ। इसलिए इनके इस फोरकास्ट को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया और बहुत नेम और फेम इनको मिला आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। ही वाज showered with honor and invitation from all over the world and lauded by the press। 1921 में फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ शांति के काम करने में मिलता है, और ये स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल थे, उनके विल के अकॉर्डिंग ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। लगभग 1 करोड़ प्राइज़ में दिया जाता है। When the Nazis came to the power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States। जब 1933 में नाजी पावर में आया, सत्ता में आया,
तो उस समय पावर में जो नाजीज का वो एडोल्फ हिटलर तानाशाह था, डिक्टेटर, उसका उदय हुआ। उसके डिक्टेटर होने से उस समय लोग इमिग्रेट करने लगे। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अल्बर्ट आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट चले गए। इमिग्रेट मीन्स वन हु लिव हिज कंट्री टू सेटल्ड अनदर कंट्री परमानेंटली, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाके हमेशा के लिए बस जाना। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसलिए चला गया क्योंकि जो हिटलर था वो तानाशाह था, और इनकी तानाशाही की वजह से यहाँ पे लोगों की फ्रीडम बाधित होती थी, लोगों के विचार नहीं सुने जाते थे। ये अपना वहाँ जाके शिफ्ट हो गए यूनाइटेड स्टेट में। 5 years later the discovery of nuclear fission. Nuclear fission means process of making atom bomb in Berlin had American physicists in an uproar. 5 साल बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन, परमाणु एटम बम बनाने की जो प्रोसेस शुरू हो गई, तो अमेरिकन जो फिजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उनमें अप्रूर हो गया, मतलब वेरी अपसेट, बहुत वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इसका जो है दुरुपयोग ये लोग करेंगे। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। बहुत से लोग जो फासिज्म से भाग के यहाँ आए थे जर्मनी में, वे लोग भी अब यहाँ से भागने लगे। फासिज्म क्या है? फासिज्म ये इटली में इसका उदय हुआ था मुसोलिनी के समय। वहाँ पे कुछ भी अगर मिस्टेक हो रहा है तो तुरंत फांसी दे दी जाती थी, कुछ भी हो जाए। जैसे डेमोक्रेसी में माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ फासिज्म में कुछ भी हो, कोई बात नहीं मान रहा तो फांसी दे दो, कोई काम नहीं किया, गलत हो गया, उसके लिए फांसी, मतलब अत्याचार था। तो वहाँ से लोग भाग के आए थे जर्मनी में। अब जर्मनी से भी लोग भाग के दूसरे जगह जा रहे हैं। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। लोग इसलिए भाग रहे थे, साइंटिस्ट और अदर ग्रेट मैन, कि यहाँ पे ये बम बनाएंगे और उसका किसी कंट्री पर थ्रो करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। इसलिए बर्बादी से बचने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ अ कोलीग मीन्स सहकर्मी, मतलब जो साथ काम करते हैं। तो अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आइंस्टाइन के जो कलीग थे, जो साथी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनको इनकरेज किया कि आप कुछ करिए। ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा। क्या उसमें लिखा? इन विच ही वार्नड अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन अफेक्ट। द अमेरिकन्स developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese city of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. इन्होंने जो लेटर लिखा आइंस्टाइन ने अमेरिकी तत्कालीन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, उसका प्रभाव ये पड़ा कि अमेरिका ने खुद सीक्रेट रूप से परमाणु बम बना लिया, और जर्मनी के कुछ करने से पहले ही ये डर से वहीं जो जापान उसका मित्र था जर्मनी का, तो जापानी सिटी जो हिरोशिमा और नागासाकी हैं उस पे जाके वो बम ड्रॉप कर दिया। तो ये 1940 टाइम का समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वार का है। उस समय जापान, जर्मनी, इस तरह के कुछ देश थे जो एक तरफ थे, बाकी अलग थे। तो जब अमेरिका को लगा कि जर्मनी कुछ नुकसान कर सकता है, एटम बम वहाँ बन गया, तो इसने इसके जो फ्रेंड था कंट्री जापान, तो जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया डर से। और उस समय जो बर्बादी हुई
बहुत ज़्यादा हुई। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो लोग बच्चे पैदा होते हैं, लूजे लंगड़े ऐसे ही होते हैं, आज भी वहाँ पे रेडिएशन दिखता है। आइंस्टीन वाज डीपली सैकेंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। इस पूरी बर्बादी से अंदर से पूरी तरह से आइंस्टाइन हिल गए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। एक जो है ऑफिशियल लेटर लिखे यूनाइटेड स्टेट्सों को। इन इट ही प्रोसेस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, this one made no impact, but over the next decade Einstein got even more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. तो जब ज़्यादा विनाश हुआ तो अंदर से हिल जाते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो है यूनाइटेड नेशन का गठन होना चाहिए जो कि वर्ल्ड पीस के लिए काम करे। आज भी यूनाइटेड नेशन है जो शांति के लिए काम करता है। कहीं भी कुछ होता है वार तो पहले यूनाइटेड नेशन उसमें इंटरफियर करता है। तो शुरू में तो अमेरिका ने नहीं माना, लेकिन नेक्स्ट डिकेड मैंने अगले 10 साल में, डिकेड मीन्स टाइम ऑफ 10 ईयर्स, आइंस्टाइन जो है पॉलिटिक्स में लगे रहे और इनका पूरा प्रयास था कि जो आर्म्स बना रहे हैं कंट्री, जो वेपन्स बना रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। दे वर फॉन्ड ऑफ पीस एंड डेमोक्रेसी, फ्रीडम। वे हमेशा एडवोकेट किए, उसकी वकालत की, वर्ल्ड पीस की, डेमोक्रेसी की, फ्रीडम की। व्हेन आइंस्टाइन died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. 76 ईयर में 1955 में इनका डेथ हो जाता है आइंस्टाइन का, और पूरा वर्ल्ड इनको वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद करता है। और ऐसा साइंटिस्ट जो बहुत ही जीनियस था, 4 साल पहले ही बता दिया 1915 में ही कि 1919 में सोलर इक्लिप्स लगेगा तो जो स्टार्स हैं कैसे डिफ्लेक्शन होगा, सारा कुछ। और हमेशा जब तक ये रहे वर्ल्ड पीस के लिए काम किए, डेमोक्रेसी के लिए काम किए और नॉन वायलेंस के लिए काम किए। और जिस भी देश में वेपन्स बन रहे थे उसके अगेंस्ट इन्होंने बोला। माना ये ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन थे। सो योर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।